ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਬਿਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀਮ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕरें और तबरक हासिल करें। ਇਹ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਕਸਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ हजरत मिर्जा ताहिर अहमद की जुराबें जियारत के लिए तबरुकात। ਇਹ ਉਹ ਜੁਮਲਾ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੋਲ ਲਓ। ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਲਵਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਨ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ऐसी बिदात को नहीं मानते, ऐसी बिदात को। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ऐसी बिदात को नहीं मानते। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ को ਜਿੱਤਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ ਯਾਰ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਟੈਗ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸ਼ੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੋਰ ਕੂਚਾ में बरपा है। मैं कह रहा हूं कि ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਬੱਲਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਕੋ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਖਰਾਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝੇਗੀ ਦੁਨੀਆ तुझे। हाँ जी, इतनी ज्यादा इलामा साहब यार, बाकी मेहमान सलाम कर। इलामा साहब कोई आए ने, पता नहीं इलामा साहब कह रहे हैं। एमजी भाई अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम इलामा साहब, यही नाम उन्होंने रखे थे, सीधे इलामा साहब ने पुकारेंगे ना जी। इलामा साहब जी, सब भाइयों का क्या हाल है? एनजी सही, बस एमजीओ के पास इलामा नहीं था तो मैंने कहा इलामा दे दे एमजीओ को भी। ਇਹ ਰਾਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨਾਮ ਇਹੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ 60 ਵਾਰੀ ਕੋ ਕਮੇਟੇ ਬਾਅਦ ਆਮਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਐ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਮਾ ਆਖ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪ? मैं तो लिखा ना, जो लिखा वही कहना पेगा ना। हाँ जी, इलामा लिखा जी। बोलो सर इलामा भाई। बस ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਰੱਬੇ ਰਹਿਮੁੱਲਾ ਦੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਦਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। सामने वाजे अल्फाज में जिन्होंने लिखा कि हम अहमदी मुसलमान ऐसी बिदात को नहीं मानते। देखो फिक्रे ते गौर करो, अहमदी मुसलमान ऐसी बिदात को नहीं मानते। कहते ने मैंने तेरी पोस्ट नूं किया है, मैं तेरे फिक्रे नूं किया है, सामने मुंह तो मुकर गए ने, सामने बह के मुकर गए ने। ऐसा इस तरह मुकरते ने, फिर जो सही गल करन गैर अहमदी दी गल क्यों मनणगे यार? तू जाके ना ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਾਲਮੇ ਜਿੱਤਾ ਕਮ ਜਾ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ। ਭੰਗੜੇ ਪਾ, ਭੰਗੜੇ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਨ ਆਮਦੀ ਕੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਲਾ। ਚਵੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਵੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਐਮਡੀ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਐਮਡੀ। कौन है कौन है? कॉमन भाई ठीक कर लेते हैं यार मोहम्मद हुसैन भाई प्लीज यार बस करो यार। देखो कोई भी मसला हो तो तवील की दुनिया ऐसी खूबसूरत है, उस पर मामला ठीक हो जाते हैं। जब भाई ने कर लिया ठीक तो बस खत्म करो यार।
لیکن بھائی ایکسپٹ بھی تو کر لینا, انہوں نے کہا ہے, وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. میں نے کم از کم 10-12 دفعہ یہ معاملہ اٹھایا ہے, لیکن ایکسپٹ نہیں کرتے وہ. استدلال طویل کر دی, آپ مان لو یار. لیکن وہ مجھے قصوروار ٹھہرا کے مانتے ہیں. وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ایسی بدعات نہیں مانتے, تو ان کا مقصود وہ جرابیں تھی. اس طرح کر لیتے ہیں کامن بھائی, انہوں نے آپ کی یہ جو ایکسپلینیشن تھی, جو طویل تھی, وہ ایکسیپٹ کر لی ہے. آپ بھی تو یہ کر لو کہ اچھا یار مجھے غلط فہمی ہوگی آپ کی بات سے, آپ بھی اتنا کہہ دو یار, اس میں کیا پرابلم. سر میں نے جو پوسٹ پڑھی ہے بالکل اسی طرح پڑھی ہے. تبرکات حضرت مسیح, آپ کبھی کسی احمدی نہیں, آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر لگا کے یہ کہا ہو کہ زیارت کریں, زیارت کے لیے تبرکات حاضر ہیں, کبھی کہا ہے؟ اتنی جو نبی ہے اس کی تصویر موجود ہے. یہ جو چین سسٹم ہے نا بھائی, تسی اپنے کو ہی رکھو, سانو نہ بھیجا کرو, سانو نہ بھیجا کرو. اللہ پاک اس کو بخش دے, اللہ پاک ان کو بخش دے, اللہ پاک ان کو بخش دے. سانو نہ بخشے پر سانو بخشایا, تسی اپنے دوسرے بخشے پر اچھا, میں تو اس دن دا تہاڈے نال گفتگو کرنا بند کرتی ہے جدو امن نذیر فسیا سی, فون آیا, کھڑا پتے آیا, تو جناب اگلے نے برا بھلا کہنا شروع کرتا. میں تو وہی دن نہیں بولتا. یہ کون سا معاملہ ہے؟ ایک ایسا دن ہی ہے. وہ تو میں بھٹکا ہوا تھا, وہ تو میں راہ راستے آج بتایا, ابھی تو آج ہی تو میں نے بتایا ہے کہ مجھے راہ راستے ہے, آج بھی تو ہی راہ راستے ہیں. نہیں میں ایکسپلین کرتا ہوں, دنیا میں واحد پیدا ہی راہ راستوں ہیں اور ہویا ہی کوئی نہیں ہے. مجھے ایکسپلین کرنے دیں, ایسے نہ کریں. علی اکبر بھائی, میں نے بتایا تھا نا میں بھٹکا ہوا تھا, مجھے عطا المنان صاحب نے سمجھایا اس بندے نے پھنسے ہوئے بندے نو آ کے کٹوایا سی, انہیں بھی اس بندے نے فون کر کے نقادہ بلایا. علیم صاحب ساڈے پاس جوزف مسیح نے, چلو چلو امن جی نے بلان سے علی اکبر بھائی, کیا خاک سار نے یہ کہا تھا نا کہ میں بھٹکا ہوا تھا, اور میں بعد میں مجھے کچھ دوستوں نے سمجھایا اور پھر مجھے میری اصلاح ہوئی. کہا تھا میں نے, ابھی دیکھ لیں پرانی باتیں یہ کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اب ایک بندہ کافر مسلمان ہو جائے اور اس کو بندہ کہے کہ تو پہلے کافر تھا, یہ اچھی بات نہیں ہوتی پیارے دوست. میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں ویس بھائی, یہ بھی اپنی غلطی مان لیں, میں بھی مان لیتا ہوں, اور میرے بڑے پیارے دوست ہیں, مجھے پتا ہے یہ مبلغ, میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ ٹک ٹاک کی دنیا میں الطاف بھائی سے اوپر کے مبلغ ہے. شعلہ بیان ہے, یہ معاملہ کی سنجیدگی کو سمجھتے ہیں, کمال کا مطالعہ ہے, خلافت کے وفادار ہیں, اور ناکوں چنے چباتے ہیں مخالفین کو یہ. لیکن اپنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم احمدی مسلمان ایسی بدعات کو نہیں مانتے, جرابوں کے نیچے لکھ رہے ہیں استغفر اللہ, اور میں نے نیچے لکھا سبحان اللہ. بھائی پلیز تحقیق کر لیا کریں. اور ابھی کیا کہا بھائی, آپ جو بات اوپر کر رہے تھے نا, جس طرح اس طرح آپ نے, آپ کی اس بات کو انہوں نے بدعت کہا تھا. اچھا میری باتیں بدعت ہوتی ہیں, میری باتیں بدعت ہیں. میری بات سن لے پیارے بھائی, آپ جس طرح سے جہاں پر مینا کا شرارتیں کر رہے تھے نا, وہ بیٹھ کے کہ جناب یہ تصویریں, وہ تصویریں, نمائش لگی ہوئی ہے, یہ لگے ہوئے, وہ زیارتیں لگی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ نمائش کے اندر چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ یہ بدعت نہیں تھی جس طرح باقی بدعت لوگ کرتے ہیں. وہ بدعت, آپ کی اس بات کو بدعت کہہ رہے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں, میں پوسٹ کے اوپر پوسٹ پہ کمنٹ کیا ہوا ہے, یہ میں اوپر موجود نہیں تھا علی اکبر بھائی, یہ پوسٹ کے اوپر کمنٹ ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. میں ادھر موجود نہیں, میں نہیں بول رہا, میں نے صرف لکھا ہوا ہے حضرت مرزا طاہر احمد کی جابیں زیارت کے لیے. میں تینوں گھر آ کے کہندا کہ تو یہ کام غلط کیتا, تیری پوسٹ ہی دسنا سی نا تینوں, تو ہو جائے میں دسنا سی کتے تین. میں تینوں فون کر کے دسدا جیسے امن نذیر تینوں فون کر کے دسدا ہے. عامر نذیر کو بار بار آپ کہہ رہے ہیں, عامر نذیر تو موجود نہیں یہاں پہ. انتہائی خنزیر انسان ہے یار, تسی بار بار انتہائی خنزیر انسان ہو. وہ تو نہیں یہاں پہ بھی, انتہائی خنزیروں وقت ہوتے. کون جو یہاں موجود نہ ہو, کہتے ہیں غیبت ہوتی ہے. وہ تو نہیں ہے, وہ تو کوئی غیبت نہیں ہے, وہ سندا پیا بنیا دے بیگ. اچھا عامر نذیر نیچے, عامر نذیر آ گیا ہے. الطاف صاحب اب بھائی کامن احمدی بھائی, اوے اوپر نذیر الطاف صاحب, عامر نذیر ہے اوپر والا. الطاف صاحب سن رہے ہو گل یا نہیں؟ جی السلام علیکم. آپ عامر نذیر ہیں؟ جی میری گزارش سے سن رہے ہیں. اکلے نذیر نے علیہ علامہ نہیں بنے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عامر نذیر کو گالیاں نکالنا شروع ہو گئے ہیں, وہ کامن احمد بھائی. نہیں چلو, جواری کا اپنی اپنی سوچ ہے نا, ٹھیک ہے, ان کا اپنا تفظ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص مکذب مکفر ہے اور واقعتاً حقیقتاً اس کے قول اور فعل اور اس کی زبان اور اس کے حرکات سے
24 घंटे ऐसे अल्फाज ही हों जो मुकज़्ज़ब व मुकफ़रीन का रुख अख्तियार किए हुए हों, तो एक गैरतमंद अहमदी की जो है वो क्या करेगा फिर? उसको क्या करना चाहिए? गालियां निकालनी चाहिए, सारी बात है। और नहीं गालियाँ नहीं निकालने, अच्छा, गालियाँ नहीं। अहमदी गालियाँ निकालते हैं। हाँ, निकाल देते होते हैं अहमदी मुबल्लिगीन गालियां, कोई बात नहीं है। अभी निकाल के दिखा देते हैं आपको। नहीं वो निकालते होंगे, लेकिन हमें तो तलीम नहीं अच्छा, है। निकालते होंगे। मैं कह आप नहीं, गालियां निकालनी लेकिन चाहिए। मैंने सुनी है निकालते होंगे, लेकिन मराद है कि हमारी तलीम तो ये नहीं है ना भाई। लेकिन आपने तबरकात लगाए, ठीक है। नुमाइश में आप भी इस साल जो नुमाइश में मसीह इस्लाम के बाल मुबारक भी थे, ठीक है, शीशे में थे, मैंने भी देखे। हाँ, मैंने भी देखी, बिल्कुल। ठीक है, मेरी बात सुने, ठीक है। वो लगे हुए हैं, ठीक है। तबरकात अल्लाह ताला का इल्हाम भी है कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे, बरकत ढूंढेंगे। ठीक है। अब जो जुराबों की बात हो रही है, बात लंबी हो गई। अब उन जुराबों में कोई ना कुछ खासियत होगी, कहाँ से आई हैं, कैसे हुए हैं, दोस्त। ठीक है। कुछ देखो, हम जब मुसाफा करते हैं या हम तबरक भी लेते हैं ना खुलफात के, ठीक है, एक हमारा प्यार मोहब्बत है, ठीक है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में आपने जुराबे लगाई, किस कॉन्टेक्स्ट से अल्ताफ भाई ने जवाब दिया? अब दो अहमदी भाई आपस में यहाँ टकरा जाएंगे और खाम खा एक दूसरे की इससे नफरत हमला करेंगे तो मुनासिब नहीं दुरुस्त होगा। बात है, दुरुस्त बात। नज़ीर भाई एक बात बताएं, ये जो तबरकात अभी आपने अपनी बात में खुद फरमाया है कि ये तबरकात ज़ियारत के लिए लगाए गए थे, दुरुस्त बात है ये? जी मैंने खुद देखे हैं। अब आपने फरमाया भी है ना कि तबरुकात ज़ियारत के लिए, ये फिक्रा दुरुस्त है ना आपका? अभी आपने बोला है। नहीं, मैं कायम हूँ इस पे, मैं भागता कायम है आप? हूँ। यही फिक्रा खाकसार ने लिखा है ज़ियारत के लिए तबरकात। बताइए, फिक्रा गलत है? नहीं, फिर लगाए इसलिए हैं लोग आकर देखें। बिल्कुल, ये ले जी, ए प्याज ए कॉमन अहमद देखो ना, आप जो नुमाइश लगाई है, जो नुमाइश लगाई है, मसला नहीं, देखो जो नुमाइश लगाई है, कॉमन अहमद भाई फजूल नहीं, इतराज चलो कर रहे हैं। नज़ीर अहमद भाई ने तारीफ कर दी। आपका मसला होगा, मेरी बात करने का ये मकसद है। मेरी बात की नहीं, देखो ना कामन भाई के ये आपकी जो बात है, मुझे भाई मसला ये है कि अगर तस्वीरें वो मैं पोस्ट करता ना तो आगे से लिखना था सुभान से लिखता सुभान अल्लाह माशाल्लाह, चूंकि लगाई अलीम ने थी तो अलीम साहब, मसला ये है, मसला है। अलीम साहब की हर बात जो है वो कुफर है, लिहाजा उन्होंने उनकी उस पोस्ट को देख कर भले वो अच्छी पोस्ट एक मिनट फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਤੇ ਗੋਲਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਲੀਮ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ तेरी कितनी पोस्टर से हमेशा सुभान अल्लाह लिखा है कहीं तो लिखा हुआ है, सही कहते हैं। जज़ाक अल्लाह, बस इस गल तो समझ आना चाहिए बंदे ने। अच्छा, मैं ना कौन भाई, जैसे अब आपने प्यार से बात की है ना, शफकत से बात किया करें हमसे, हम आपके छोटे भाई हैं, हमें समझाया करें, हमसे प्यार किया करें, हमसे शफकत फरमाया करें, डांटा नहीं करें हमें। अभी देखें नज़ीर अहमद भाई आए हैं, उन्होंने भी वही लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। नज़ीर अहमद भाई ने कहा कि तबरकात ज़ियारत के लिए पेश किए गए। अब यही वो अल्फाज है, और मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो, ठीक बात है, ये तबरकात है, ज़ियारत के लिए रखे इसलिए। मैंने भी सिर्फ यही लिखा हुआ है, ज़ियारत के लिए तबरकात, बस 3 लफ्ज, ज़ियारत के लिए तबरकात। अच्छा, एक गुजारिश करना चाहता हूँ अलीम भाई। बस अलीम भाई, जैसे बताया गया है, जलसे के ऊपर रखे हुए थे और उनका सेम मकसद था। अगर वो जलसे से उठ के टिकटॉक पे पिक्चर पे आ गए तो क्या डिफरेंस हुआ? सेम ही है, क्या डिफरेंस? अहमद भाई एक चीज की करेक्शन कर ले, आपको मौका दे दें। जी जी एक चीज की करेक्शन कर ले, जो तबरक होता है ना, वो चीज होती है जो आपको मिले, तो देखने से वो चीज मतलब वो तबरक आपके लिए थोड़ी है, वो मतलब आप ये कह सकते हैं वो निशानी, उसको आप ये कह सकते हैं कि उनके इस्तेमाल की हुई अशिया, ये इस तरह से आप उसको फिक्रा गलत हो गया, ज़ियारत के लिए तबरकात फिक्रा गलत हो गया। वो तबरकात नहीं है, मैं राय दे रहा हूँ, मेरी राय नहीं, आपकी राय ठीक है। तबरकात चीजों को कहते हैं, तबरकात का मतलब ये है कि ये तबरकात हैं, वो बरकत होती है जो लेने वाली होती है, वो तबरकात हैं जिनकी ज़ियारत करनी है, ये मामला है। मतलब आंखों के लिए मुतबरक है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, तबरकात है ना, वो पढ़े भी हों, ले भी हैं, टच भी करें, आंखें भी के नजारा देखना, ये बेसिकली ये बात है असल में। तो प्यारे भाई, कॉमन भाई, हम बिल्कुल भी एक अलीम भाई, वहां पे जहाँ पे वो नुमाइश लगी हुई थी, वहां पे उनको मुतबरकात लिखा हुआ था। हाँ, एक जगह पे, 2 जगह पे, 6 जगह पे किताबें पढ़ी हुई हैं तबरकात में। हज़रत खलीफतुल मसीह मौद जब रोटियां खाते थे तो मसीह मौद के सामने जो रोटियां गिर जाती थी, जब वो रोटियां खाते हुए उठते थे ना, तो रोटी खा के उठते थे, तो मसीह मौद के सामने कई रोटी के टुकड़े गिर जाते थे।
تو وہ صحابہ کو اکٹھے کرتے تھے, وہ بھی تبرک تھا. وہ تو فزیکل بات ہوگی نا, وہ فزیکل بات ہوگی. میں کہہ رہا ہوں مسیح موعود مطلب وہ کسی لے تبرک, میں نے ہاں اب وہی ہے نا, وہ لے لیتے تھے, میں آگے جو عرض چیز کرتا ان ہوں. کو مل گئی وہ تو تبرک ہو گیا. جو بھائی اپنا گل مکن نہ دینا, علی صاحب اگے عرض کر دے جانا ہے تبرکات. میں صحیح کہہ رہا ہوں, وسلم دی جڑی چیزاں پئی نے متبرکات نہیں, وہ بھی تبرکات ہیں, وہ بھی تبرکات ہیں. اور مسیح موعود کا کوٹ مبارک وہ بھی تبرکات ہے. حتیٰ کہ علامہ افضل قادری صاحب مطابق یا خادم صاحب مطابق تو انہوں نے بخانا ہی متبرک سے, وہ بھی کھا لیندے تھے صحابہ کرام. ہاں جی, ہاں بالکل بالکل بالکل. تو یہ جو جرابے ہیں, نیچے بھائی نے بھی لکھا بات نہ بدلو, تو میں یہ جرابے جو ہیں یہ بھی تبرکات ہیں, یہ بھی متبرک جرابے ہیں. اور ان کے جو بال مبارک ہیں حضرت مسیح موعود کے موئے مبارک, وہ بھی تبرکات ہیں. خلیفۃ المسیح ثانی کا سکاف, یہ نذیر بھائی میری بات کی تائید کریں گے اگر یہ اس دفعہ ہو کے آئے ہیں ادھر سے نمائش سے, تو نذیر بھائی بتائیے گا سکاف اور خلیفۃ المسیح ثانی کا پرس مبارک, بیگ مبارک, پرس مبارک لیدر کا, وہ بھی تبرکات ہیں. اور تبرکات کے اندر ہی شیشے کے اندر بند کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو. تو یہ سارے تبرکات ہوتے ہیں. ان میں سکاف ہے ایک گلے میں باندھنے والا, نہیں ہوتا وہ 7 رنگی ہے, وہ 6-7 رنگ کا ہے. نذیر بھائی ایسے ہی ہے نا. اور وہ جو شیشے میں رکھنا ضروری ہے کہ ہاں جی خراب نہ ہو نا, جی خراب نہ ہو. تو یہ سارے تبرکات ہوتے ہیں. لوگ لگاتے بھی ہیں ہاتھ لگا کے, وہ باقی وہ بدعت ہیں, وہ بدعت ہو جاتی ہے, وہ بدعت ہو. لیکن زیارت احمدی ہم کرتے ہیں, زیارت کرنا بدعت نہیں ہے پیارے دوستو, زیارت کرنا بدعت نہیں ہے, میں اس کو بدعت نہیں سمجھتا. تو کامن احمد بھائی آج مسئلہ حل ہو گیا نا. بھائی آپ نے پہلی دفعہ کبھی براڈ پہ اس قسم کی چیزیں میں نے دیکھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے دونوں بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. اختلاف ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے, اختلاف ہونا چاہیے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنا سفرنامہ دکھا رہے تھے ہوں گے نا کہ یہ میں نے جلسے پہ یہاں یہ تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں کہا براڈ پہ ایس قسم کی میں نے دیکھی. 24 گھنٹے ساری براڈس پہ ہوتے ہیں نذیر بھائی. دیکھیں نا میری بات سنے نا منسن بھائی, کچھ براڈ نکل گئی ہوگی. وسلم کے زمانے میں صحابی گئے تھے, کسی کو دم کیا, سورۃ فاتحہ پڑھی, تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا. ایک گروپ کہتا تھا کہ فاتحہ پڑھ کے پھونک نہیں مارنی اور کھانا, تو دوسروں مطلب اختلاف ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا سورۃ فاتحہ شفا ہے, کوئی ایسا کوئی حرج نہیں ہے. تو بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو پھر کوئی نا کا مسئلہ نہ بنائیں, کوئی بات باعث رحمت ہے, یہ باعث رحمت ہے. میرا اور کامن احمدی بھائی کا اختلاف باعث رحمت ہے. آپ کو پتہ ہے دیکھیں نا ان کی عزت نفس کا بھی خیال کریں نا, ہمارے بھائی ہیں. جن کو آپ بدعتی کہتے ہیں نا, ان کے ہاں اب انہوں نے بھی, وہ بھی سیانے ہو گئے, اصطلاح آ گئی ہے بدعت حسنہ. لیکن نہیں دیکھیں اب ان کی بات, وہ بھی معزز ہیں, ان کی بات کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنی لحاظ سے سوچ سمجھ کر نیچے کوئی لکھا ہوگا. پلیز ان کی بات کو بھی ڈرائی نہ کریں نا. کوئی نہیں, معاف کرتا ہوں, میرے دل میں کوئی بات نہیں, میں نے آپ سے معافی مانگی نہیں ہے. بات سنیں, بات یہ ہے معاف کرتا ہوں ناصر بھائی, اصل میں یہ مدعا انہوں نے پچھلے دفعہ بھی اٹھایا تھا. یہ تقریباً کچھ مہینہ پہلے کی بات ہے یا کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے. اس وقت میں نے یہ جو ان کو ایکسپلیشن دی تھی, وہ آج بھی میں نے وہی ایکسپلیشن دی ہے. میں نے جو پوسٹ پہ جو میں نے اس کے کیا تھا, کیا نام اس کا کمنٹ کیا تھا, وہ اس ضمن میں تھا کہ یہ جو کام ہے نا, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تصویر, یہ جن نالائن پاک کی یہ تصویر ہے, یہ تبرک حاصل کرے جناب. تبرکات اسی لیے لگایا نا. نہیں ایک منٹ. ہاں, تو میں نے کہا میں اس چیز کو جو ہے میں ڈینائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہوتی ہے. کبھی کسی بندے نے تصویر لگا کے کہا یہ جی تبرکات ہیں, یہ اس تبرک حاصل کرے تصویر سے. نہیں, جہاں تک آپ درست ہیں, بالکل درست ہیں. نہیں درست نہیں ہے, نہیں درست ہے, ایسے نہ مانے. لکھا ہوا ہے زیارت کے لیے تبرکات, یہ غلط بات کر رہے ہیں, نہ مانے ان کی بات کو, نہ مانے آپ. لکھا ہوا ہے ان کی بات نہ مانے, آپ امین کی بات مانے جا رہے ہیں. سن لیں نذیر بھائی, یار سارے باقی میوٹ لگائیں, کیا نذیر بھائی مطلب نہ دیتے میوٹ لگا لیں, سارے دوست میوٹ لگا لیں. نذیر بھائی ایسے ہی نا ہر بات کو مانتے جائیں, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی, وہاں پہ لکھا ہوا ہے زیارت کے لیے تبرکات چیزوں کہہ رہا ہوں میں, یہ لکھا ہوا ہے. اور ٹھیک, مطلب آپ نے جو محاورہ جو نذیر صاحب آپ میوٹ لگا لیں یار, ایک بندہ کرتے جاؤ بات. نذیر بھائی جب میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں یہ دکھا بھی دیتا ہوں یار آپ کو, آپ لوگوں کیوں سمجھ نہیں آ رہی. میں ان کی بات نہ مانو بھائی, آپ ایسی شرارتیں نہ کیا کریں یار, بات خطا میں ان کو دکھاؤں گا, پھر یہ میری بات نہیں ماننی انہوں نے. میں خاموش.
हाँ जी अलीम नहीं, मैं अब साहब दिखाऊंगा जहाँ आपको। की शरारत कर दे हो, चलो मेरे को फसाद पे आ रहा है ना। भाई मैं अभी कहने लगा था हाँ जी, बात क्या हुआ है? नजीर मेरी कॉल आ गई थी, कोई वो शिकायत नहीं? इख्तलाफ पे हमारी बात हो रही है कि दो अहमदी भाइयों में अगर इख्तलाफ हो जाए तो बाइस रहमत होता है। तो ये बात ये दुरुस्त है, कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं है। कॉमन अहमद यार भाई मैं मेरे भाई हैं। भाईजान अलीम साहब तो अल्लाह का नाम अभी छाड़ दो। अगली और बात करने लगा यार, और बात करने लगा। मेरा और मोहम्मद अहमद भाई का इख्तलाफ हो गया। हजरत वो क्या कौन से बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा था ला लिखना मत्थे पे, मुझे तवीज से बात याद आई। राजगी साहब, हाँ हाँ, हजरत गुलाम रसूल राजगी साहब, उनकी नवा को कट्टा खोलने लगे जे, ये आंदे ने कहा थल्ले ना जाए बस। अच्छा, उनकी एक बात थी जिसके ऊपर मेरा और यार अवैस चुप भाई का करके इख्तलाफ हो बैठना गया। है, बात ही करनी है, करने तो क्या प्रॉब्लम है, उसका अच्छा आंसर कर ऐसी देना। बातें नंगी, ये नंगी तारे हैं, फिर उलमा जज्बाती हो जाएंगे, फिर को फसाद। अरे कुछ यार नहीं नहीं होता होता है इस बात टिकटॉक पे, नंगी तारे कुछ भी नहीं है टिकटॉक पे, कोई अहमदी नहीं है, सारे वेले पागल इधर अच्छा, कर रहे हैं, परेशान ना हो। मेरा अभी ना हमारे नजीर अहमद भाई ने ना एक बात की है कि कुछ सहाबा का इख्तलाफ हो गया, ठीक है। ऐसे मेरा भी मोहम्मद अहमद भाई से इख्तलाफ हो गया। हम सहाबा तो नहीं है, लेकिन हम तबा ताबईन है ना, हम तबा ताबीन है। तो दुनिया तारीख में लिखेगी, ये तारीख जब लिखी जाएगी ना आज से 500 साल बाद, तो तारीख लिखेगी कि दो तबा ताबईन, हाँ, तो दो लिखा जाएगा कि दो तबा ताबईन का आपस में इख्तलाफ हुआ। एक आलम थे मोहम्मद अहमद भाई और एक मोहम्मद सैन भाई, और इनका जो इख्तलाफ की वजह थी वो हजरत गुलाम रसूल राजगी साहब का एक इल्हाम बना। हजरत मौलाना गुलाम रसूल राजगी साहब को इल्हामन बताया गया कि जब सर दर्द हो ना तो माथे के ऊपर ला लिखना चाहिए, ला मतलब ला, सर दर्द ठीक हो जाता है। मैं हाँ लिख ही जाना है, 3 7 दुरूद शरीफ पढ़ना है। मैंने ये बात मोहम्मद अहमद भाई को बताई तो इनका मेरे से इख्तलाफ हो गया, ये माने ही ना। मैंने कहा यार ये अल्लाह ने बताया, माथे के ऊपर आपने लिखना है लाम अलिफ ला, अल्लाह ताला ने बताया हुआ है। अब नजीर भाई ये बताएं आप, ये जब अल्लाह ताला बात बता दे कि माथे पे ला लिखो सर दर्द ठीक हो जाएगी, इस बात में क्या अटकना चाहिए? बहस करनी बनती है नजीर अहमद भाई? अली अहमद साहब मैदान अमल में आ गए, अली अहमद साहब को मौका दे दें। कॉमन अहमद भाई जवाब दे दे। कॉमन अहमद भाई जब अल्लाह ताला ने बता दी है, जवाब दे दो यार, करारा जवाब देना कोई। करारा ओके, जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि माथे पे ला लिखना है, ला सर दर्द ठीक हो जाएगी, फिर इस बात पे कोई अटकना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए? अरे पूरा बताओ ना मेरे साथ, ऐसे पूरा तो बताओ, साथ में दुरूद शरीफ पढ़ी जाना, साथ में लिखा जाना, लिखते रहना ला ला ला, नहीं नहीं हाँ, जाना है, लिखते जाना है। ये बात है कोई इख्तलाफ? या एमजी भाई मौजूद है, एमजी भाई को तो वो दोनों दोस्त मतलब एक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, अल्लाह ताला ने दसी है। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਲੜ ਕਰਨੀ ਰਿਹਾ, ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਸਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और इधर एमजी पे भाई अमल करना को चाहिए। एमजी भाई अब अल्लाह ताला ने गुलाम रसूल राजगी साहब को बताया है, अलामा साहब उन्होंने अपने आप को खुद तो अलामा साहब लिख लिया है, लोग मतलब आप कहते सी और उन्होंने उस गल नूं मान भाई लिया। बात यह है, कोई भी जो इल्हाम है या कोई तहरीर है, आप पहले वो तहरीर हम सामने रखें, उसको पेश करें, वो क्या लिखा हुआ है उसको फिर पढ़ के समझ आएगी ना कि क्या फरमा रहे हैं वो बात। नहीं इतराज यही नहीं कर लिखा रहा हुआ कोई है, भी, अलामा साहब जो इतराज नहीं उन्होंने कर बताया रहे, यही लिखा हुआ है, इतराज नहीं है। सिर्फ आपको ये सवाल है कि अगर अल्लाह ताला ने गुलाम रसूल राजगी साहब को बताया हो, अगर गौर से सुने ना, मैंने पहले भी वो इनको अल्फाज बताया कि बता मेरी देना, बात, क्या बताया मैं अल्फाज? वही तो सर आप जरा मेरी बात गौर सुने, मेरी बात के अंदर ही मेरी बात का जवाब होता है। मेरी बात जरा पूरी मुकम्मल सुना करें ना आप, 2 मिनट मैं पहले 2 मिनट इसीलिए कह बाद रहा हूँ सारा कुछ आ वो जाता है। मैं वही आपकी, क्योंकि आपका एक मर्तबा है, मुकाम है, उसकी वजह से मैं चाह रहा था कि आप 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद सारा बताएंगे तो फिर समझ मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद अहमद भाई और मैं हम तबा ताबईन है ना, तो तारीख ये लिखेगी और ये बात अच्छी हो सकता है बाद में इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए। इनका मेरा इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ की वजह क्या बनी कि एक किताब मैं पढ़ रहा था, हयात कुदसी नाम की किताब है, राजगी साहब की सारे जानते, उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बताया कि माथे के ऊपर सर दर्द का इलाज ला है, मरकजी ख्याल बता, लाम अलफ ला, और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ना है, और साथ साथ माथे, मैं सारा आप ये लगा ही दो, आप लगा ही दो, पढ़ भी दो, नहीं, मैं लगाने वाला काम नहीं आता, मैं पढ़ देता हूँ। सर दर्द का इलाज हेडिंग है, ठीक है,
क्या हेडिंग है? सारे पीछे बोलो, क्या हेडिंग है? सर दर्द का इलाज हेडिंग है। हाँ, का इलाज है। ऐसे ये पढ़ना है अपना मोहम्मद भाई, सर दर्द का इलाज हेडिंग दर्द का है। इलाज। सर हाँ जी, दर्द हाँ का जी, इलाज हेडिंग है। मैं बस तवज्जो चाह रहा हूँ कि सब तो सर दर्द का इलाज को हेडिंग है। सुन रहे हैं ना। हाँ जी, ठीक है। वो लिखा है कि एक मर्तबा मुझे ख्वाब में बताया गया जिस शख्स के सर में दर्द हो उसके लिए यूं अमल किया जाए कि उसकी पेशानी पर ला का हरफ लिखते जाएं, मतलब ये 2 दफ़ा मैंने कर दिया, लिखते जाएं, वहाँ पे 1 दफ़ा लिखते जाएं और दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, तो इंशाल्लाह ताला दर्द दूर हो जाएगा। चुनाचा जब मैंने इस ख्वाब का जिक्र एक मर्तबा मोज़ा पट्टी मुगला में किया तो वहाँ के एक अहमदी दोस्त मिर्ज़ा अफजल बेग साहब ने इसका बारहा तजर्बा किया और लोगों को फ़ायदा पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात का कोई बंदा बहस करे कि उनको किसने बताया, अल्लाह ने नहीं बताया या ये अमल नहीं करता, तो बात बनती है, अच्छी बात है ये, इसकी मुखालफत लिखा बंदा हुआ है करे। कि मुझे ये बताया गया, मैं पढ़ रहा हूँ। ये देखें, मेरी एक बात सुने, जो हजरत मौलाना गुलाम रसूल राजेगी साहब की जो एक तो पहली बात है, ये ख्वाब है, इल्हाम नहीं है। बताया गया ख्वाब। इसको करेक्शन कर लेना, क्योंकि शुरू में इल्हाम बताया गया, हाँ ठीक हो गया, सही। ये इल्हाम नहीं है, ये ख्वाब है। किस्सा में भाई खुदा के बंदो क्या करें? अल्लाह ने वो बताया ना ख्वाब, वो नबी का होता है, नबी का ख्वाब नहीं, मोहम्मद अहमद साहब किस्म नहीं है, जो लिखा है वो करे ना, किस्में बाद में देख वही लेंगे। था, उनको ख्वाब में बताया गया। किसने बताया ख्वाब में? ख्वाब में बताया गया। किसने बताया? अब चीज ख्वाब में ये बताया है गया। कि अमरी भाई, अलामा भाई, 1 मिनट है। ख्वाब में बताया गया, किसने बताया? अल्लाह ने ख्वाब में ख्वाब कौन दिखाता है? अल्लाह दिखाता है। ख्वाब में बताया गया, जब ये फिक्रा आता है ना, ख्वाब में बताया गया, इसका मतलब होता है अल्लाह ने बताया है। आगे चले। वो पहले, अब मेरा ख्याल है एक दफा फिर 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे कर ले तो फिर ही ख्वाब में बताया गया, बस ये याद रखना है कि अल्लाह ताला ने बताता है ख्वाब में, अल्लाह ताला ने ख्वाब में बताया गया। आप जारी रखें बस। राजेगी साहब का प्यारे भाई, ख्वाब है, अल्लाह ने ही बताया होगा, दूसरा ऑप्शन आप चूज नहीं कर सकते यार, खुदा के बंदो क्या कर रहे हो? बात ये है प्यारे भाई कि इसमें कर लेने में वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। दुरूद शरीफ जिसको मतलब ये अच्छा लगता है वो ये करता रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। लिखना भी मैंने है माथे पे लगा। हम बचपन में देखते थे कि जो किसी को सर दर्द होता था ना, तो वो ऐसे 2 हाथ का अंगूठा और जो चीची होती है छोटी उंगली, जो इससे वो दम किया करते थे सूरत फातिहा। कई लोगों को मैंने देखा है, ये मैं अहमदियों की बात नहीं कर रहा, मैं गैर अहमदियों की भी बात कर रहा हूँ कि ये लोग वो आपने सूरत फातिहा पूरी पढ़ते हैं, मतलब एक दफ़ा वो दरमियान तक लाते हैं दोनों उंगलियों को। है किसी का तजर्बा ये बात या नहीं? हाँ जी मेरा है सर। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये मतलब ये तो देखें, अल्लाह ताला के कलाम में तो तासीर होती है ना, ये तो हमारा ईमान है, ठीक है। तो दुआ ही कर रहे हैं ना, दुरूद शरीफ पढ़ रहे अलामा हैं। भाई, ये आपको क्यों लग रहा है किसी ने इतराज किया है? आपको ऐसा क्यों लगा है कि किसी ने इतराज किया? मैंने तो नहीं कहा कि इतराज किया। खाक सर ये कह रहा है, खाक सर ये कह रहा है कि इख्तलाफ हुआ है दोनों का आपस में। इतराज के बाद ही होता है ना ऐसे। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि सर पे ला लिखना माथे पे ये कोई बुरी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये बुरी बात, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये इस पे ये तवज्जो की वो बाकी दरूद के ऊपर फोकस नहीं किया हुआ, माथे के ऊपर ला लिखना और साथ साथ दरूद पढ़ना, ये अल्लाह ताला ने बताया है। इस बात के ऊपर फोकस करना है। ये बात ठीक है ना, अल्लाह ने जब बताया तो इस पे कोई है कोई इतराज करने वाली बात, इख्तलाफ करने वाली बात? अमजी भाई ये बात है। फिर आपने ये तजर्बा किया उसके बाद या नहीं? तजर्बा तो हो चुका ना, वो जो आपने उसके अंदर है और साथ में दुरूद शरीफ मैं भी लिख रहा हूँ। अभी मैंने बात करते हुए 2-3 दफा लिखा है। इनको सर में दर्द होता ही नहीं है अल्लामा भाई। ला 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 अभी सर दर्द हो रहा है भाई आपको? पता क्या है यार, ये तो 24 का एक्सपीरियंस था। बात तो ये चल रही थी कि भाई ना का मतलब वो तो होता है नहीं, अब ना करके साथ में दुरूद शरीफ पढ़ना, ये कुछ समझ नहीं आ रही, इस पे चल रहा था। तो इसमें क्या हिकमत है? क्या हिकमत भाई है? ने बोला कि नहीं भाई, राजेगी साहब ने कहता किसी ने तजर्बा किया, वो नहीं, हो ला गया का तो हो मतलब गया। ला जो है उसको तो फिर आप सब क्या समझ सकते हैं? उन्होंने खुद अगर समझाया तो मतलब ठीक नहीं है। होता है।
नहीं उन्होंने क्या उस बारे में कोई तफसील बयान किया? नहीं मतलब सर दर्द को नहीं कह रहे हैं ना वो, कि ना हो। सर दर्द को नहीं कह रहा, नहीं सर दर्द सुनती है, सर दर्द सुनती भाई है। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, या फिर किसी या फिर कोई तहरीर में और पाकिस्तानी भाई, कहते हैं तो नाम नहीं आया। तवील का जंगल कितना खूबसूरत है यार, कुछ भी ठीक कर देता है, पता है? जी मोहम्मद साहब भाई, मैं बात कर, सर दर्द जो है वो सुनती है सर दर्द सुनती है कि उसका मैं मिसाल देता अच्छा, हूँ। एक दफा तो उमर के जमाने, रज़ी अल्लाह के जमाने में कोई कैद हुआ था, तो कोई आपके पेट में गड़बड़ था, तो पेट के हाथ, उन्होंने पेट पे हाथ रखा था, तो कहा पेट ठीक हो जा। अच्छा बात ये है कि ये सारी चीजें भाई जो है मेरी ना, आवाज आ रही है? मुझे आ रही मुझे अली अहमद भाई, आ रही है। खादिम हुसैन अली अहमद याद को आ बोलने गए, दे, खादिम अली हुसैन अहमद को रिजवी बात साहब करने याद आ दे, गए। अली अहमद को बात करने दे पहले। अच्छा अली समझ अहमद को खादिम बात हुसैन करने दे। रिजवी याद आ गए, कहने मैं क्या सीधे आयो, कुर्दों को कहा सीधे आयो, उसी सीधे हो गए, ठीक हो गए। अली अहमद भाई, गुर्दे अंदर ही सीधे हो गए। अली अहमद भाई, अली अहमद की बारी, अली अहमद की। मोहम्मद भाई आजकल पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो गया है। दावत इस्लामी के जो अतार साहब, जी जी उन्होंने कहा है कि अगर आप सूरत कौसर जो है वो पढ़ के टंकी पे फूक दें और अव्वल और आखिर में बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो आपका 30 हाइब्रिड गाड़ी हो जाएगी, आपकी 30 से 40% आपकी गैस की बचत हो जाएगी। ये तो उनके माशाल्लाह। तो ये मुख्तलिफ वो तो वज़ाइफ और हैं। फिरके के हैं, वो और फिरके के हैं यार, वो उनकी बात सही नहीं ना हो सकती। राजा के साहब की परफेक्ट है, वो सही है। अच्छा वो हमारे फिरके अच्छा के फिर हैं, ठीक, वो दूसरे चलो फिरके अच्छा का हुआ थोड़ा आपने मानना है हमने। मोहम्मद अहमद आपने लेकिन- तस्दीक- आपने तस्दीक कर दी। 2 मिनट दे, मैंने भी कुछ बोलना था। जी जी अली भाई। ये मोहम्मद अहमद भाई, ये जो आपने अभी हाथ सुनाया ना और ये ला वाला है, ये 100% ऐसे ही होता होना है कि इससे समलोत दुरुस्त हो जाती है। ये पहले जो अलामा साहब ने बताया कि पाकिस्तान में वो 2 अंगूठे रख के वो दम भी करते हैं और फूंके भी मारते हैं, वो दबाते हैं मैंने बक्सर को यार, अपने, साथ में यार, क्या है यार, अच्छा सुन लेना मोहम्मद अहमद कौन भाई, है यार? मोहम्मद अहमद भाई नहीं सुनेंगे, फिर अगर आपने वही बोलना है तो आप बोले। मैं सुन रहा हूँ, मेरा वैसे फिर ये इतराज फिर कोई नहीं है, बिल्कुल वो सच्चा फ्लो वाकया है। पूरा वो चेंज हो जाता है ना वो। Sorry, फिर sorry, जैसे पहले मोहम्मद हुसैन साहब, पहले वो मियाँ साहब से भी वो फ्लो बाकी वो हो जाता है, ड्रिल हो जाता है। तो ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है कि फर्क पड़ता है, बंदे को आराम आता है। उस चीज पे फिर मैंने रिसर्च की, फिर पता चला कि वो जो अंगूठों से वो दबाया जा रहा होता है ना, असल वही चीज होती है। आप दरूद पढ़ें ना पढ़ें, आप चुप करके भी बैठे रहे और अंगूठों को वैसे ही मूवमेंट देते रहे, इंसानों को आराम मिलता है। इस तरह ला लिखें, लिखते जाएं, दरूद ना भी पढ़ें, आपको शिफा मिलेगी, आपको ये महसूस होगा। ये दुनिया में ऐसी चीज़ें होती ज़रूर है मोहम्मद अहमद। पॉइंट से लिखना है, मार्कर से लिखना है। अली भाई ये तो फिर कहानी हो गई। उंगली से आपकी बात उंगली से मान वो ले। बोल रही हैं, अली वो भाई, उंगली अली से भाई, बोल रही हैं, वो किसी मार्कर से, पेन से, किसी चीज से नहीं बोल रही। ये हाशिया रही थी मोहम्मद अहमद। अली भाई अभी ये तो अभी फिर बताया भाई ने, जो ये- लिखा है वही करना है, वहाँ पे नहीं ये लिखना तो है। फिर अली भाई अच्छा मोहम्मद भाई एक मिनट। अली भाई ये तो फिर कहानी होगी ना, अगर ये मान लिया जाए कि द्रूशी पढ़ने पड़े बगैर भी इलाज आ जाएगा, क्योंकि उसमें बताया गया है कि ख्वाब में बताया गया कि ला लिखते जाना है और द्रूशी पढ़ते जाना है। अगर दरूद शरीफ का ना देखा जाए तो फिर ला का मतलब तो एक मसाज हो गया ना। वो तो मसाज आप कह रहे हैं, मसाज से आराम आ जाएगा। अल्लाह ताला फिर नहीं अजीब भाई। बातें सिखा रहा है, तो बस तक वो तो फिर मसाज कह रहा है, यार अल्लाह बस ये के बात मसाज नहीं है करो। मोहम्मद अहमद भाई, जो बंदा जिसकी तरफ जड़ा जिधर दरवाजा खुलता है ना, वो ओदी राम राम वाला राम राम कहेगा, दरूद शरीफ वाला दरूद शरीफ कहेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਜਦ ਭਾਈ ਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਸਾਜ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮਸਾਜ ਕਰੋਗੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ वो यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, जड़ा राम राम अरशद करता भाई है आप राम। समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। ये तो एतकाद की बात होगी, ये अल्लाह ताला सिखा रहा है खुद। अल्लाह ताला फिर गलत बात कह रहा है ना, नौज़ अल्लाह ताला सिखा रहा है, तो कोई बंदा लाए जिसने ये किया है और उसको वो आराम कह मिले। रहे हैं मौजू पट्टी में वो तो सर- रोजा पट्टी आया राम। वो बंदा लाए जिसने ये किया तो वो ठीक नहीं हुआ, जिसको शिफा नहीं हुई, वो बंदा लेकर। ये अच्छी बात है, लेकिन बात ये कि हम करते भी तो नहीं है ना। अल्लाह ताला की मिट्टी ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਜਾਨ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੋਦੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਬੜਾ ਬਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਕ ਨਹੀਂ ਝਪਕੜੀ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ 20 ਹਿਸਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮਲ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ 20 ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा यार ये मोहम्मद जवाब ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। जलसे से पहले खुतबा सुना था आपने? इसका जवाब भी तुसी देना है क्योंकि इस्लाम तुसी हो। मेहमान ज्यादा थे और जर्दा नहीं था, हुजूर ने कपड़ा हाँ। रख के जर्दे के अंदर हाथ लगाया था, वो सभी महफिल ने खा लिया था, रिमेंबर? हाँ हाँ, मुस्लिम मौत का, हाँ मुझे पता है, यार मुस्लिम मौत का। नबी पाक घर खाने को ना बत्ती भी जाती है ना, सारे टब्बर ने खाना भी खा लिया, सारे खा रहे। और देखो जी, बरकत वाले चावल मशहूर हो गए थे, बरकत वाले चावल मशहूर हैं। नहीं चावल छो यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को ना बत्ती बुझाता, चिराग बुझाता, लंगर सारे खा ले, बाद पता लगा लंगर फिर पे है, इतना होता नहीं है। बात आपकी ठीक है। ऐसे ही मसीह मौद ने भी अपनी उंगलियां मुबारक जरदे के अंदर डाली, जरदा इतना वसी हो गया कि सारे मेहमानों ने खाया, जरदा फिर बच गया। जी जी माशाअल्लाह जी। ठीक है, ये बात है। लेकिन बात ये है कि आगे से जो आप रसूल करीम का ये दूसरा मिसाल देते हैं, आप मुझे ऐसे लगता है जैसे मुकाबले पे लेके आ रहे हैं दोनों को। मुकाबला काहे का, क्यों करना है मुकाबला? अगर मुकाबला नहीं कर रहे, दोनों एक है। जज़ाकल्लाह। मैं तो यही कहता हूँ, वो बेस्ते उला थी, ये बेस्ते सानी है। रसूल करीम और मसीह मौद एक ही वजूद है। वो बेस्ते उला में मक्का में आए थे, बेस्ते सानिया में कादियान में आए हैं। ये सब मसला है। और किस कदर ये बेवकूफी है कि मैं बेस्ते सानिया की मिसाल दे रहा हूँ और एक बंदा आता है बेस्ते उल्ला की मिसाल ले आता है। ओ भाई, ये भी तो वही है। वो आप क्या है का कंपैरिजन कर रहे हो? कंपैरिजन क्यों? अगर कंपैरिजन करना भी है आपने तो इसका जवाब भी आप ही नहीं देना है, क्योंकि असल वारिस तो आप हो। तो ये क्या साइंस है कि आप मुकाबले में वो बात लेके आगे मुझे बता रहे हो? मैं तो उसके भी बाद भी आपसे पूछूंगा कि भाई कैसे एक शख्स का उन्हीं के साथ मुकाबला करा देते हैं। हाँ, एक शख्स का उससे से मुकाबला करा रहे हैं। हद है भाई, हद है भाई, कमाल नहीं कर दिया भाई। बेस्ते उल्ला का बेस्ते सानिया से यहाँ तो मुकाबला करा रहे हो, या उन्हीं का उन्हीं से मुकाबला। वही मोहम्मद है, वही अहमद है, वही अहमद है, वही मोहम्मद है। ऐसे दो बंदे बाद बैठ फोन करे, एक दूसरे फोन कर यार आज मरदगियां से फसा नहीं सकेगा है ना। हाँ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਫਸਾਨੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਫਸਾਨੇ ਨੇ। ਇੰਜ नहीं ਹੁੰਦਾ भाई। रसूल करीम की बेस्ते सानिया कादियान में हुई है। कर नहीं सके, ये कहना खिलाफत के खिलाफ ਅਸੀਂ कर नहीं सके। हाँ, अल्लाह के फजल से कोई खिलाफत के खिलाफ नहीं कर पाएगा। मोहम्मद अहमद भाई जितनी मर्जी कोशिश कर लें। नहीं, आप लोग आज के फोन करेंगे ना, आप कहेंगे यार बड़ी कोशिश की थी पर ऐसे ढीठ ने, ऐसे ज़ूम्बीज़ ने ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 100 ਦਫਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ज़ूम्बीज़ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ बैठी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी बरकत वाली बात है। मैं तो इन बातों का अलीपुर भाई आपको हमेशा पता है कि मैं कहता हूँ, हमारे जो अभी एक बड़े मशहूर मुरब्बी साहब हैं हमारे इधर जर्मनी में, उनकी बेटे की आंख खराब थी और आंख का ऑपरेशन था। और वो वैसे भी आपने ये बात पहले नहीं सुनी होगी, मैंने नहीं सुनाई, पिछले दिनों में उन्होंने बताया। ये मुरब्बी साहब ने खुद ही वाकया सुनाया पिछले दिनों में। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था, तो उन्होंने फरमाया था कि वो अच्छा मुझे नहीं, वो बात भूल गई मुझे, प्रेजेंस से निकल गई, मेरा दिमाग खराब हो गया। चलो मैं ये जो टॉपिक कुछ पढ़ने वाला था, अभी ये जितनी बात हुई है ना, मुझे नहीं पता कि आप ये सब दोस्त ना, मुझे नहीं पता बदजनी क्यों करते हैं। ये जितनी भी बात हुई है बिल्कुल मुसद्दका थी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, मैं कुछ पढ़ते हैं यार, पढ़ाई का काम भी करता हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ एक चीज़ ना, बड़ी मज़े की है। उसमें ये अखबार है अल-हकम, ठीक है, जिल्द नंबर 5 है, उसके है। उसमें लिखा है कि हज़रत अक़दस हस्बे मामूल सैर को निकले, अहबाब साथ थे। मौलाना मोहम्मद अली साहब सैयद मोहम्मद अहसन साहब फ़ाज़िल अमरोही ने अर्ज़ किया कि हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ साहब का एक ख़त आया है जिसमें लिखा है कि इश्तिहार एक गलती का अज़ाला मैंने सुना।
सुना आगे क्या बोला? अच्छा, इसमें नबूवत का दावा मिर्ज़ा साहब ने किया है और तुम अब मुकल्लद हो गए हो, इसलिए तुमसे मुलाकात करनी नहीं चाहता। ये गोया इस कार्ड का मफहूम बताया। हज़रत अक़दस ने फरमाया कि उस ख़त का जवाब मुफस्सल उनको लिख दिया जावे ताकि तबलीग हो जावे। फरमाया कि ताज्जुब की बात है, ये लोग इसे दावा जदीद कहते हैं। बराहीन में ऐसे इल्हाम मौजूद हैं जिनमें नबी या रसूल का लफ्ज़ आया है। चुनाचा हुवल्लज़ी अरसला रसूला बिलहुदा और जरीउल्लाह फ़ी हुदुल अंबिया वग़ैरह इन पर गौर नहीं करते, और फिर अफसोस ये नहीं समझते कि ख़त्म नबूवत की मोहर मसीह इसराइल के आने से टूटती है या ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से। ये फ़िक्रा गौर तलब है। वो कहते हैं फिर अफसोस ये नहीं समझते कि ख़त्म नबूवत की मोहर मसीह इसराइल के आने से टूटती है या ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से। ख़त्म नबूवत का इनकार लोग करते हैं जो मसीह इसराइल को आसमान से उतारते हैं, और हमारे नज़दीक तो कोई दूसरा नबी आया ही नहीं, ना नया नबी ना पुराना नबी, बल्कि ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर दूसरे को पहनाई गई है और वो ख़ुद ही आए हैं। क्या अगर शबी में हाफिज़ साहब अपनी तस्वीर देखें तो क्या औरतों को पर्दा कर लेना चाहिए कि ये कौन गैर महरम घुस आया? आप उनको खूब मुफस्सल और वाज़े ख़त लिखें। फिर सिलसिला कलाम में फरमाया अंबिया अलैहिस्सलाम के आने के वक्त लोगों के हालात दो किस्म के होते हैं। वो इस्तिआरात की हकीकत पर महमूल होती है। यहाँ पे ये पेज ख़त्म हुआ अखबार का, मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। तो आपकी बात सही है। वैसे तो ये उला और वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए हैं, कुछ नया नहीं आ गया। हाँ, कुछ नया नहीं आया। लेकिन यहाँ पर आप जरा ध्यान देखो कि मैं जब कहता हूँ कि मसीह मौद ने, यानी कि रसूल करीम की बेस सानिया में, ऐसे कर लेते हैं, हाँ जी, रसूल करीम बेस सानिया में उन्होंने हाथ डाले, उंगलियां डाली जर्दे के अंदर। जब अम्मा जान ने आगे बताया कि जर्दा सबसे थोड़ा है, जर्दा पेश नहीं करती, मेहमान आ गए हैं, मेहमानों का एक टोला और आ गया है, मेहमान पहले थे और मेहमान आ गए हैं, और सबसे जो कम डिश है ना हमारे पास वो जर्दा है। ठीक है, तो सबने क्या था, हुजूर ने कहा था नहीं जर्दा, हाँ, अम्मा जान ने कहा कि हम जर्दा पेश ही नहीं करते मेहमानों के आगे, बेइज्जती होगी, जारी बात खत्म हो जाएगा। तो सबने कहा कि जर्दा ले आओ। जर्दा लेके आया गया, ऊपर एक दुपट्टा या कपड़ा बिछा दिया गया। हसन आए, उन्होंने अपनी उंगलियां मुबारक जो है जर्दा के अंदर डाल दी और वो आंखें बंद कर ली, कुछ खामोश हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी उंगलियां बाहर निकाली, कपड़ा ऊपर ही है, उन्होंने कहा जर्दा सर्व करना शुरू कर दो। जर्दा सर्व किया गया, इतना सर्व किया कि अल्फाज आते हैं कि सब ने सैर होके खाया, मतलब कि रज के खाया। जो जर्दा थोड़ा था वो सैर होके खाया गया, सब ने रज के खाया, जर्दा फिर भी बच गया। अब जब ये बात सुनाई जाए तो वहां पे एक जज्बाती अहमदी थे, वो के ठहरो, बेस्ते उल्ला में प्याला भी तो था। तो हाँ, तो था, वही तो मैं कह रहा हूँ, बेसानिया में ये है, उधर प्याला भी था। अगर इस पे इतराज है तो जवाब भी तो आप ही नहीं देने। बात आपने माशाल्लाह अच्छा वाकया सुनाया, लेकिन आपकी बात के अंदर फिर मुझे अकीदत और मोहब्बत नजर नहीं आई। काट लिए पर बात ये है, बार-बार खामोश है, आप अकीदत ना ढूंढो, लेकिन वो तो चेक करो जो मैंने दलील दी है कि मैं बेस्ते सानिया का जर्दा बता रहा हूँ। कहते हैं बेस्ते उला में प्याला था, तो भाई था, इधर भी था। वो जवाब आपने देना है। अगर वो गलत था तो ये सही कैसे, अगर ये सही है तो वो गलत कैसे? वो एक ही वजूद थे। नहीं, मेरा ख्याल अली भाई दोनों को सही कह रहे हैं। हाँ जी, दोनों को सही कहना चाहिए। लेकिन ये उसके मुकाबल पर ये मिसाल पेश कैसे की जा सकती है?
दैट इज वो द क्वेश्चन। जज्बात में कर गए, भूल गए थे, उन्हें लगा कोई गैर अहमदी आया हुआ है बस कर गए, अगर हम तो त्रास कर ही नहीं रहे। वो गैर अहमदियों के सामने रखना है, अब इधर नहीं रखना, सीएमओ के सामने नहीं रखना ये इतराज। इसको ये मंतक का एक मजमून है, जामिया में पढ़ाया जाता था पहले, पता है आपको, अब बंद हो गया है। बहुत पहले मंतक का मजमून जामिया में मुकम्मल तौर पर पढ़ाया सब्जेक्ट होता था। मंतक का बड़ा मुश्किल, वो यही बताते थे कि मंतक बनाते कैसे ये हैं। तो बड़ा जरूरी है रिलीजन में, मंतक बहुत जरूरी है, मंतक तो बहुत जरूरी है। खास तौर पर कॉमन अहमदी भाई को मंतक सीखनी चाहिए। यार मंतक तो बहुत आज लोग किस मिशन पे हैं मुझे बताइए। मिशन मोहम्मदी, सिलसिला आलिया अहमदी आलमगीरिया। इनको यार ये बड़ी बदजन है अली मोहम्मद हसन भाई, मैं बंद कर दूं ब्रॉड यार, ये बदजनी इनके दिल में पता नहीं अब कैसे दूर करे। हाँ, मैं भी इन्हीं बातों से ब्रॉड लगाना छोड़ दी है, इन्हीं बातों से ब्रॉड लगाना वैसे भी छोड़ दिया, इन्हीं अली की वजह से, लोगों की वजह से। आपको तो मियां साहब ने मना किया था। असल बात ये है कि ब्रांड लगाना छोड़ दिया लेकिन वो काम नहीं छोड़ा। वो काम नहीं ना छोड़ा, ब्रांड लगाना छोड़ दिए। मैंने आपसे पूछा कि यूट्यूब पे ना 2 नशिस्तें पड़ी हुई हैं किसी बंदे की, वो जो है ना जंबा साहब के, आमिर साहब, डॉक्टर आमिर साहब, उनके साथ, तो वो आप के साथ जो 2 नशिस्तें की हुई हैं यूट्यूब पे आमिर भाई के साथ। आमिर भाई वैसे दोस्त हैं हमारे ग्रुप में, आते रहते हैं, गपशप होते रहते हैं। वैसे यूट्यूब पे वो वाले नहीं यार, हाँ वो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, उनसे नहीं हुई। वो तो अब जंबा साहब को भी छोड़ गए हैं, अब तो वापस नहीं उनके साथ नहीं है, वो नहीं। इनका क्या नाम है, जो इंग्लैंड से आते हैं, जो वैसे भी जो इंग्लैंड से आते हैं, उनका नाम है उसका जहूर, वो जहूर है, वो जहूर हो रहा है, आमिर हो रहा है, नहीं उनके साथ नहीं है। अली भाई, आप जैसे डॉक्टर आमिर साहब की बात कर रहे हो ना, उनकी 2 नशिस्तें जरूर हुई हैं। एक हुई है फरहान रब्बानी साहब के साथ, और एक और हमारे एक भाई उनके साथ हुई है। तो वो सुनी थी मैंने, और उस पर फिर मैंने बाद में फरहान भाई को ढूंढा, जो उन्होंने उनको चीज़ें मजमून भेजा। आपने अगर दोनों सुनी है तो वो लास्ट पे आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि मैंने जम्मा साहब को कुछ भेजे हैं मज़ामीन लिख के ना, उनको नज़रसानी कर लें। तो मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी, मैं क्योंकि दोनों की बात बड़े डिटेल से सुनी थी, तो मैं वो ढूंढना शुरू कर दिया फरहान रब्बानी साहब को। फिर खैर शुक्र है मिल ही गए। तो फिर मैंने फरहान भाई कहते हैं वो मजमून तो गया, अब तो बुक लिख दी मैंने। मैं कहा वो फिर बड़ी मेहरबानी होगी, वो सवाल करें। फिर फरहान भाई ने वो किताब भेजी, फिर मुझे इस टॉपिक पे एक और किताब मिली जो उससे भी ज़्यादा बेटर थी। तो वो अगर आपका दिल होगा, अगर इसके मजमून को, सारी गेम को समझने का, तो मुझे बताना, मैं भेज दूंगा आपको। बाकी वो आमिर जो था ना, डॉक्टर आमिर, वो अब जमा साहब को भी छोड़ के वो रिवर्स आ चुके हैं। वो आ गया। मैं ज़हूर की बात कर रहा था, वैसे मैं ज़हूर के साथ नहीं, वो तो अमीर है ना, वो तो यूके के अमीर है। हाँ, तो ज़हूर साहब के साथ हमारी गपशप होती है। मैं ज़हूर साहब को मिक्स कर रहा था आमिर साहब के साथ। ठीक, मेरी आवाज मिलती है अली भाई उनसे? आपको कैसे लगा कि वो मेरी बात है? जी, वो थोड़ी आवाज मिली थी इस वजह से। अच्छा, नहीं हमारे आमिर साहब का गायबाना तौर पे अली भाई, आप ज़हूर कहते हैं, मुझे लगता है हुजूर कह रहे हैं, जैसे जरा ज़हूर वाज़ेह नहीं जरूर इंग्लैंड में जो इस जमात अहमदिया इस्लाह पसंद के जो अमीर है ना इंग्लैंड के, ज़हूर है। उन्होंने ही तो वो बीबी फाइजा का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने इंटरव्यू उसने किया हुआ। हाँ, बीबी फाइजा किया था इंटरव्यू, उन्होंने किया था। तो वो आते हैं कभी कभी, हमसे गपशप उनकी होती है, लेकिन ज्यादा आमिर साहब हो रहा है। पर बात ये है कि जो तबलीग है किसी फर्द वाहिद का, वो मिले ही नहीं। अच्छा, करनी थी गपशप पर वो मिले ही नहीं। फरहान रब्बानी साहब का आपको पता है ना कौन है? वैसे भी फरहान रब्बानी साहब का पता है ना, ये वही अपने बिल्कुल पता है, बताया ना नहीं, उनको ढूंढ के मैं दूसरी वाली बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी एक और बात कह रहा हूँ, मुझे भी याद आई है। आपको पता है कि फरहान रब्बानी साहब वही गामदिस्ता वाले हैं? हाँ, वही है एग्जैक्टली। गामदिस्ता वाले ये वही हैं। बिल्कुल बात में ज्यादा हो यार, ये दोनों भाई, ये दोनों बंदे बात कर रहे हो कि एमडी भी बोले अंदर यार, आगे भाई बोले। अल्लाह अकबर, ये इतनी बुरी बात की है, लिए मैं ब्रॉड बंद कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, सब वैसे भी दफा करो, बंद कर दो, दफा करो, बंद कर दो। तेरा अपना इखराज होया है, तू नहीं, आप भी कह देना तेरा अपना इखराज यार। नहीं, हमने थोड़ी कहना है, हम तो किसी का इखराज कर ही नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने भी तो कहा है ना, कोई अहमदी बोले। कोई नहीं, अली भाई की ये मोहब्बत है अपने फिरके से, जज्बात में आके कर देते हैं, पर अब हम वैसे थोड़ी हैं यार। अली ये मसला जिसको मर्जी जब मर्जी निकाल दे।
यार अलीम साहब से बात कर लें यार भाई, वो अलीम साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, आपको पता है मैं चास लेने के लिए बैठा हूँ यहाँ, मुझे पता है सारे सादा बंदे बैठे हैं। अलीम साहब अलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ अलीम साहब को बताएं यहाँ पे मजाक में बात हो रही होती है, सीरियस नहीं लेनी किस चीज को, वो कहते मेरा दिल टूट गया। नहीं मैं दिल इसलिए कह रहा हूँ कि अब ऐसी बातें होगी तो ब्रॉड बंद कर ही देते हैं मेरे ख्याल में, अब बुरा नहीं तो। हाँ क्या करें करें नहीं, वैसे 6 बज गए ना, मैं घर पहुंच गया हूँ यार दोस्तों। हाँ हाँ इंशाल्लाह वही ताला जिंदगी पता है रही मुझे, तो इसलिए कह रहा फिर हूँ। मुलाकात होगी। सोहबत हाँ जी, बाकी। सब दोस्त खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला सबको खुशियां दे, बिल्कुल। इसी तरह वैसे एक हंसते रहें, आखिरी बात मुस्कुराते रहें। जी जी कह रहे थे ना, अच्छा मैं दोस्तों मैं ऐसे ही कुछ की बात बुरी लगे तो मैं माजरत खाऊं, ऐसे ही अल्ताफ भाई का थोड़ा सा शुक्र मिलना भी हम लगाते हैं, हमको छेड़ते भी हैं। अल्ताफ भाई से बड़ा पुराना और प्यारा ताल्लुक है अल्ताफ भाई का। हसन भाई वो बात ना, जो छिड़ता हो उसे छेड़ना चाहिए। जिसने सुननी थी सुन ली हुई है, तो मुझे लगता है वो जराबों वाली बात से मूव ऑन होते हैं, बड़ी दफा हो चुकी है। ठीक है आगे निकलते हैं। ਹੁਣ ਕੋਈ अली ਨਵੀं भाई ਗੱਲ ने क्या ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ नवी गल ले आओ, ठीक है भाई खत्म भाई, आज आखिरी दफा अली भाई ओके हो गया, अली भाई वादा जिनको मसला हुआ था ना आपकी बात से, जिनको मसला हुआ था आपकी बात से, उन्होंने तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उनको मैंने भेजने की चीजें। हाँ वो आए नहीं था ना, मैं असल में मैंने देखा था अल्ताफ भाई नीचे बैठे हुए, तो मैंने कहा चलो और नहीं तो यही शुरू करते हैं दोबारा। हाँ जी, जो मुझे अल्ताफ भाई नीचे थे। और सुभान भाई सादा आदमी हैं, जिनको मसाइल हुए तो उलमाए कराम को उनको मैंने भेज दी थी, उनको करारा जवाब भी दे दिया था। हाँ तो बस ठीक है, वैसे ही बस अंदर थोड़ा सा मैं कहा चलो शुगर भी बन जाए, गपशप भी है सब दोस्तों से। ठीक है दोस्तों, हाँ सेहत रही जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ताला। ठीक है भाइयों, किसी ने कोई बात कहनी है, कोई नसीहत करनी है या डांटना है, कोई कर ले फटाफट, बस फिर हो मैं बंद गया करूँ। हो गया हो गया सबका, नजीर भाई, अलामा भाई, कॉमन भाई। जी जी सर ठीक हो गया। मुझे इनकी मोहम्मद भाई, अलीम भाई जो आरटी मोहम्मद नाम की है, पहली दफा मेरी इनसे बात हुई है, जी नजीर भाई हाजिर तुम आ गए हैं। बड़े अच्छे ये दो आइडिया ने ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ एक देखो मैं तो अपना मैं तो लोबे लोबाब ये करूंगा, बहुत हाजिर तुम आ गए। शरीफ आदमी ने शरीफ आदमी ने बहुत शुक्रिया नजीर भाई, बहुत शुक्रिया। होगी मुलाकात। जज़ाकल्लाह। चलो अली अकबर भाई क्या कहने लगे थे आप? मैं कोई शरीफ आदमी है, अब नजीर से बता रहा हूँ, मोहम्मद सैन साहब शरीफ आदमी है, आप इनको फॉलो कर लेना, अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल, चलो ठीक है फिर हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये मोहम्मद भाई, जी भाई, ये वाटर भाई ने लिखा है कि उस दिन 1000 बरेलवी अहमदी हुए जिस दिन करोड़ों बैतें हुई थी ना, जिस साल में, मेरा ख्याल ये उस साल की बात कर रहे हैं, जिस साल में करोड़ों बैतें हुई थी उसमें 1000 बरेलवी भी अहमदी हुए थे एक दिन में। ये वाटर भाई का मेरे ख्याल रात नहीं है, सोने का टाइम है, वो नींद में कर रहे हैं टाइम। नहीं ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? अच्छा हाँ हाँ जी हाँ जी, नहीं, वो बताते हैं फिर रात सोते नहीं है, शायद अभी सोने लगे हैं, तो नींद में बंदा ऐसी बातें ये करता हो है। सकता है। ऐसी बातें एमडी खूब करते हैं ना, उनको खूब हाँ जी। वाटर भाई की सुनेंगे फिर। चलो दोस्तों फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हाँ जी भाई, मैं घर पहुंच गया हूँ, तो अब इंशाल्लाह ताला फिर आप सही। नहीं आए तो कल आज सुबह मैं फिर धक्के खाता हुआ नादिर भाई की ब्रॉड पे चला गया, ओए होए, तो जब मैंने वहाँ मैंने सवाल सुबह लगाई थी मगर आप नहीं आए, तो फिर वो अली भी की भी बड़ी मीटिंग देर थी, वो तक चला गया। यहाँ टिकटॉक के घूमता रहा हूँ कि मोहम्मद भाई आएंगे तो हम कोई बात सुनेंगे उनकी, अच्छा अच्छा, लेकिन आप आए नहीं मैंने चलाई थी, फिर मैंने बंद कर दी। मुझे था कि कॉल शॉल अगर आई आपकी या किसी की तो फिर लगा लूंगा, तो फिर अली भाई की जब मीटिंग खत्म होगी तो फिर मैं भी आ गया। हाँ उन्होंने ऐलान किया था एमडी बिल्कुल ना आए, तो दूसरे लोग जो आना चाहें वो आए, तो मैं चला गया अच्छा। ऊपर, उनसे सवाल किया, अच्छा तो इतनी देर में उमरो अम्मार भाई आ गए, उन्होंने कहा इनको नीचे उतार दें या इनसे बात ना करें, इनको हाँ। छोड़ दें। ठीक हो गया। तो बस फिर उन्होंने उतार दिया, मुझे उतारा तो नहीं, लेकिन ये है कि मेरा म्यूट कर दिया मुझसे नहीं बात की, बाकियों से फिर बात करते रहे। फिर मुझे किसी ने बताया कि मोहम्मद भाई आ गए हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलेंगे, मैं उधर। और हमने सुबह लगाई थी अली भाई, आप कहीं और थे, फिर इसलिए मैंने बता दिया था अहमद भाई को, फिर दोबारा लगा, एक दफा लगा के फिर बंद कर दी थी हमने। अच्छा अच्छा। दूसरा ये कि कल अपना मौला मजलूम जो हैं, हाँ जी, उनके यहाँ बातचीत होती रही, कल मुनाजरा उनका और एक उमैर साहब से बड़ा अरे वो अच्छा। सुन रहे होंगे, उन्होंने फिर आ जाना है, तो फिर मैं जाने मेरे मैंने जाने का उनसे टाइम। बात करनी थी लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया। अच्छा, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे इंशाल्लाह। मजलूम मौला मजलूम जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करें कि आप कल बात करें,
मैंने कहा चलें, चलो। आज मौका मिलेगा तो करेंगे। हाँ जी, कल इंशाल्लाह ताला कल कर लेंगे हैं। चलें, मैं चलो चलता हूँ, दोस्तों। फिर सैनी भाई की ब्रॉड ऑन हो गई है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, चला ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, 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 अस्सलाम वालेकुम हाफिज़। रहमतुल्लाह। जी, अल्लाह हाफिज़, जी, अल्लाह हाफिज़। पहले जो है 1,24,000 जो नबी आए हैं वो किस तरह साबित हो सकती है बात, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे बात करें। अभी के आने वाले की बात नहीं कर रहा मैं, मोहम्मद नहीं वसल्लम से पहले की जो सच्चे साबित होने की बात कर रहे हैं। नहीं उनके आने के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपका जहन क्या कहता है कि अहमदियों से आपको क्या जवाब मिला है इसका। ये एक सिंपल सा सवाल है। ये नहीं, अहमदियों का क्लेम हो गया। हम जाते हैं सीधा पीछे अपनी किताब की तरफ। हमारी किताब जो कहती है वो कहती है यदा यदा हे धर्मस्य ग्रवणीन भावती भारता। ये अगर संस्कृत के शब्द हैं, आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा कि जब जब ज़मीन पर जुल्म, बर्बरियत, झूठ, फरेब, मकर, दगाबाजी, ज़्यादती होनी शुरू हो जाएगी, तब तक मैं, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अवतार धार के आऊँगा। अब कृष्ण हर बारी अपनी माँ कुंती के पेट से तो पैदा होकर नहीं आएगा ना, ठीक है, वो तो नहीं आ सकता, वो कोई अवतार आएगा। हम उस कॉन्सेप्ट से सबको सच्चा मानते हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ है, लेकिन सारे अपने अपने वक्त के हैं। मेरे साहब ने आप आया तो वक्त के ये भी तो वक्त है ना। इन्होंने कौन सी उल्टी बात की है, अच्छी ही बात की है सारी। वो कुरान के वो जो आपके कहानियाँ ना, उनको निकाल के आपके सामने पेश की, ये कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं चलेगी, ये कहानी। बड़ा कमाल है उनका। हम कहानियों से नहीं निकले, जो वो बोले हैं ना कृष्णा वाले, जिसे सनातनी जिसे हम कहते हैं, बहुत कहानियां हमारे पास, इतनी स्टोरियां कि जो आंख बंद करके कहो सच्ची मानो तो फिर हम कभी भी किसी दूसरे प्रॉफिट को, नबी को नहीं मान सकते। कहानियां ही कहानियां। अब कहानी से निकलो, कहानियों का नहीं मिलता। वहाँ आपने कभी महाभारत की कहानी सुनी है, रामायण की कहानी सुनी है? नहीं सुनी आपने। हमारे वहाँ बड़ी बड़ी कहानियां हैं हमारे उसमें, वो कहानियां चल रही हैं इधर भी। मूसा की तरफ भी आगे, मूसा, प्रॉफिट मूसा और कृष्ण जी महाराज की कहानी एक है। मूसा को नील दरिया में दिखाया गया कि नील दरिया में वो टोकर में बिठा के उसकी माँ बहा देते कि वही उसका कत्ल कर देगा वो जो फिरौन है। तो कृष्ण जी महाराज को टोकरी में बिठा के पानी